Hello. Hello. Yeah, hi Hello. Good everyone. evening, sir. Hi, sir. Hello, sir. Yes, hello. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay. कौन बाकी है आज ज्वाइन करने में? निनाद आ गया, नीलोफर है, यशवंती, आलोक भी है, बरखा, रूही, परमेश्वर। मुझे टोटल 9 दिख रहा है। अगर मैं मेरा माइनस करता हूँ तो 8। यशवंती 2 डिवाइस से मतलब 7 पार्टिसिपेंट है। तो एक कभी नहीं है। पूर्णिमा, यस। पूर्णिमा का मैसेज आया था कि किसी की डेथ हुई है, वो कुछ दिन के लिए क्लास नहीं करेगी। फैमिली में किसी की डेथ हुई है। ओके, तो अभी हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल का जो मैंने वीडियो दिखाया था ना आप लोगों को, वो उसके बाद इंटरनेट का इश्यू हुआ था। एंड आफ्टर दैट वी कंप्लीटेड आवर क्लास लिटिल अर्ली। तो आप में से किसी को वो वीडियो फिर से देखना है? कल का वीडियो पावर Yes, पॉइंट का। sir. ओके, एक एक यस बोला। फिर और किसी को जरूरत है? हाँ सर। यस सर। दो लोग यस बोल हाँ, रहे दिखाओ हैं। सर एक बार। तीन लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो 7 में से 3 लोग यस बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% के करीब है। तो मैं वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ। ओके ओके सर। अच्छा, वीडियो शेयर करूँ पावर पॉइंट का? उससे पहले एक्सेल में किसी हाँ को सर। कुछ पूछना है? नो सर। ओके, कोई किसी को कोई डाउट एक्सेल में प्रैक्टिस किया हो? और ठीक है, आज डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेल की प्रैक्टिस करा कीजिए और डाउट आपके क्लास में लाते रहिए, ठीक है ना? ओके। सर एक है कि यस। आप वो एक्सेल शॉर्टकट की फाइल शेयर करने वाले हैं। अच्छा, एक्सेल के शॉर्टकट की। हाँ यस, हाँ हाँ। ओके, चलो मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास कहीं पे या तो वर्ड वर्ड फॉर्मेट में या कहीं पे है कोई एक्सेल के शॉर्टकट। मैं एक काम करोगे, एक्सेल के नहीं, मैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों के शॉर्टकट की होंगे ना कीबोर्ड वाले, तो वो तीनों का आपको दे दूंगा सब लोगों को, ठीक है, ग्रुप में शेयर करूंगा। ओके। लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं होगा। गिव मी सम टाइम एंड आई विल डू दैट। ओके, फाइन। और कल हमारी क्लास नहीं रहेगी क्योंकि कल मोहर्रम है, इसलिए कल छुट्टी रहेगी। एवरीबडी नोटेड? हाँ सर। ओके। और परसों Yes, क्लास sir. रहेगी, परसों एज यूजुअल। ओके। ओके, बाकी सब लोग म्यूट पे जाइए। राइट, तो वीडियो में प्ले कर रहा हूँ। Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. PowerPoint is an easy-to-use program that lets you design your own presentations. You can use it to create slideshows, presentations for work, multimedia projects, and just about anything else you can imagine. When you open PowerPoint, there's a good chance you'll be taken to the Start screen first. From here, you can access recent presentations or create something new, either from scratch or from one of the built-in themes. In this example, we'll click Blank Presentation. Next, you might want to take a minute to explore the interface and make sure you know your way around. Why don't we begin with the ribbon, which is the collection of tools and features at the top of the screen. The ribbon is divided into tabs like Design, Insert, and Home, so you can easily find what you're looking for. There are also commands on each tab that have been organized into groups.
For example, if you look closely at the font group, you'll find it has everything you need to work with text, including options like bold, italics, font color, and size. Some groups even have an arrow in the bottom right corner that you can click to view even more commands. If you ever feel like the ribbon is taking up too much space, you can always hide or minimize it. All you have to do is click the arrow in the upper right corner, then choose the option you want. Also in the upper right corner is a place where you can access your Microsoft account. Here you can update your photo, manage your account settings, or switch to a different account altogether. For help working with PowerPoint, take a look at the Tell Me feature. It works just like a regular search bar, allowing you to quickly find the right tool or command. All you have to do is enter what you want, and you'll be given a list of options. You can use the command directly from the menu without having to find it on the ribbon. You can even customize your copy of PowerPoint to make certain commands more convenient. Take the Quick Access toolbar in the upper left corner. This area gives you access to frequently used commands like save and undo, no matter where you are in the ribbon. To add more commands, just click the tiny arrow next to the toolbar, then choose the ones you want. I'm going to add New and also Quick Print because I use both of these commands pretty frequently. Now let's take a look at the presentation itself. In this example, I've opened a business profile that I'm working on. You can navigate between different slides using the pane on the left, while the space in the center is where you'll actually create and edit your presentation. At the top and to the left of the center pane, you should see two small rulers. These make it easier to adjust your presentation and align the objects on your slide. To show or hide the rulers, go to the View tab, then check or uncheck the box depending on your preferences. You can also turn on grid lines and guides for even more control over your slide layout. In the bottom right corner, you'll find a few more tools that let you change the way your presentation is displayed. Here's what the tools look like up close. To zoom in or out, click and drag the zoom control. The number next to the slider will tell you what the zoom percentage is. You can also switch between different slide views using these 4 buttons. Normal is selected by default. This mode is great for everyday tasks like creating and editing slides. Slide Sorter displays smaller versions of the slides in your presentation. Reading View hides all the editing tools to make your slides easier to review. And finally, Play Slideshow will play your slides as an actual presentation. Last but not least, I'd like to give you a quick tour of the Backstage view. You can get there by clicking the File tab. Just look for it on the far left of the ribbon. Here you can access all kinds of information related to your current presentation and more. This includes commands like New, Open, Save, and Print. All you have to do is click an item in the left pane, and it'll open on the right. This makes it easy to find what you're looking for and review your options all in one place. That covers the basics of PowerPoint. Now that you're comfortable with the interface, including the Backstage view, the ribbon, and the work area, you're ready to start your first presentation. Okay, so now, as per the video, she said that now you are ready for your first presentation. Okay, so you know the basic thing. आपको कैसा PowerPoint दिखेगा वो सब आपको पता चल गया। कल मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास वर्जन अलग अलग है सब लोगों के पास, तो आपका इंटरफेस सबका अलग होगा। जैसे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 7 वर्जन है, तो मेरा इंटरफेस अलग दिखेगा आप लोगों से। 365 में अलग इंटरफेस होगा और आपके पास फैसिलिटी भी ज्यादा होगी अगर लेटेस्ट वर्जन पे। गुड। तो मैं अपना पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूं और आप लोगों को एक एक चीज वहां से दिखा रहा हूं। तो आज का हमारा ये जो पूरा नेक्स्ट 45 मिनट है उसमें आप सारी चीजों से अवेयर हो जाओगे प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले। फाइन, सो मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूं।
जैसे कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में इस तरह से दिखता है। बाकी बाकी सब लोग म्यूट पे रहिए, क्योंकि ये हमारा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जब आपको आंसर देना हो तभी आप अनम्यूट कीजिए। ओके फाइन। सो ये वर्क प्लेस है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, एक ब्लैंक स्लाइड है। और ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे स्लाइड लिखा है, उसके बाजू में आउटलाइन है। मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस ब्रॉड हो गया। ये आउटलाइन, अभी मेरे स्लाइड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और ब्लैंक है, इसलिए आउटलाइन में अभी कुछ दिख नहीं रहा है आपको। जब हम वर्क करेंगे तब आउटलाइन में कुछ हमें दिखेगा। अभी ये स्लाइड ब्लैंक है। और यहाँ पे ये छोटा सा जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है, वहां पे आपको एकदम ब्लैंक दिख रहा है, व्हाइट, जैसे A4 साइज का व्हाइट पेपर ना हो वैसा। लेकिन जब आप बड़ा व्यू देखते हो तो दो चीजें आपको दिखती है, दो बॉक्स दिखते हैं। एक है क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो सबसे पहला, तो आपको अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल यहाँ पर रखना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि उसका कोई सब टाइटल भी है, मतलब आप सेकंड लाइन लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सब टाइटल लिखो, ओके। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप टाइटल लिखो, ओके। आप ब्लैंक रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर टाइटल टू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। परफेक्ट। नाउ और भी कुछ कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में नीचे देखो, नॉट लास्ट में, ये जो फ्रंट में जो बड़ा ब्लैंक स्लाइड है उसके नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा है। मुझे ये स्लाइड यहाँ पे मैं कुछ, क्योंकि कल हमने सुना था किसी के शेयरिंग में कि पावर पॉइंट में सिर्फ पॉइंट होते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना। और जब आप पॉइंट लिखते हो तो वो पॉइंट में भी आप मिनिमम वर्ड यूज करोगे, 3 4 5 वर्ड से ज्यादा यूज नहीं करो तो अच्छा है। नाउ अगर आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में और ये जो स्लाइड आप बना रहे हो उसके बारे में कुछ नोट्स लिखनी है, तो आप यहाँ पर नोट्स लिख सकते हो। हर स्लाइड में नोट्स लिखने का ऑप्शन यहाँ पे होता है। ये इतना छोटा सा अभी दिख रहा है ना आपको, इतना है। अगर आपको चाहिए कि नोट्स का एरिया बढ़ाना है तो आप यहाँ पे अ, अपना माउस का कर्सर ले जाइए और ये कर्सर अभी चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब मैंने लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया और ड्रैग कर रहा हूँ इसको, तो मैं ये एरिया बढ़ा सकता हूँ लिखने का। इट इज समथिंग लाइक दैट। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्लेन जो पेपर होता है ना, और वहां पे लिखते हैं कि किसी तरह से यहाँ पे ये फैसिलिटी है आपको लिखने के लिए। अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, मैंने इतना रखा जितना पहले था। ओके, तो ये है क्लिक टू ऐड नोट्स। और आप देखेंगे नीचे बॉटम में, तो स्लाइड 1 ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंटेशन में टोटल स्लाइड 1 है, जिसमें से आप अभी कौन से स्लाइड में हो, 1 स्लाइड पे, पहली स्लाइड पे हो, इसलिए यहाँ पे 1 ऑफ 1 लिखा है। नाउ उसके बाद लिखा है ऑफिस थीम। मतलब ये हुआ कि अभी जो स्लाइड आप यूज कर रहे हो उसकी थीम जो है वो ऑफिस थीम है। मतलब जैसे आप ऑफिस का प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो कैसा प्रेजेंटेशन का होना चाहिए, एकदम डिसेंट होना चाहिए, ज्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, फॉन्ट भी प्रॉपर साइज के होने चाहिए, तो वो ऑफिस थीम बोलते हैं। तो ये ऑफिस थीम है। फिर यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, मतलब कौन सी लैंग्वेज पावर पॉइंट में आप यूज कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में इंग्लिश इंडिया सेट किया है। आप लोगों के कंप्यूटर में भी हो सकता है इंग्लिश यूके लिखा होगा, या कभी कभी हो सकता है इंग्लिश यूएसए भी लिखा होगा, ठीक है। लास्ट बॉटम में अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ, यहाँ पे 3 छोटे छोटे आइकन है। एक है नॉर्मल व्यू, जो अभी आप देख रहे हो, नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का व्यू। उसके बाद जो दूसरा है वो स्लाइड सॉर्टर है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर का मतलब अगर आपके प्रेजेंटेशन में एक से ज्यादा स्लाइड्स है तो इस स्लाइड के थोड़े छोटे छोटे थंबनेल बन जाएंगे, और यहाँ पे सारे थंबनेल्स आ जाएंगे जितने भी स्लाइड होंगे।
अगर आपके प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड है तो 10 स्लाइड यहाँ पे दिखेंगे, और एक साथ 10 स्लाइड आपके सामने होंगे तो आप उसको मैनेज करना है, आगे पीछे करना है तो वो कर सकते हो, उनका मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ओके। उसके बाद ये जो है वो स्लाइड शो है। एक्सक्यूज मी। तो ये है स्लाइड शो। अब यहाँ पे शो करके मैं दिखाता हूँ। आप लोगों को शायद कुछ पैच आ रहा होगा, मैं कुछ करता हूँ पैच ना आए इसके लिए। ओके, फिर से मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। हाँ, और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ स्लाइड शो। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि स्लाइड में कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने एस्केप बटन दिया। सॉरी नीलोफर, कुछ बताया आपने? नो सर। ओके। राइट, मैं वापस यहाँ पर नॉर्मल व्यू पे चला जाता हूँ। ये स्लाइड का नॉर्मल व्यू हुआ। उसके बाद जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था, एक्सेल में, वैसे यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने का कंट्रोल है। करंटली ये 68% पे दिख रहा है आपको। आप इसको प्लस माइनस से भी बढ़ा सकते हो, और अगर आप ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्केल है, वो स्केल का यूज करके भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। और उसके बाद फिट स्लाइड टू करंट विंडो एक ऑप्शन, मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ क्या है इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ये फिट स्लाइड टू करंट विंडो का मतलब क्या हुआ, आपकी स्लाइड करंट विंडो के ऊपर फिट होगी, मतलब सारी चीजें दिखेगी। और ये अगर आपको फिट टू विंडो करना है तो 68% पे रहेगा। अगर मैं ये जूम इन कर रहा हूँ, 100% किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्लाइड जो है ना वो स्क्रीन से बाहर जा रही है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहे हैं आपको। अगर आपको पूरी स्लाइड एक ही स्क्रीन पे देखनी है तो आप फिट टू करंट विंडो कर दीजिए, तो आपको ऐसा दिखेगा। ये सारी चीजें आपको बॉटम लाइन मैंने समझाई। अब हम देखते हैं, सबसे टॉप पे जाते हैं। सबसे टॉप पे आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा है। वर्ड में आप ओपन करते थे तो डॉक्यूमेंट 1 आता था, ठीक है। एक्सेल में अगर आप कोई नया फाइल ओपन करते हो, न्यू फाइल, तो उस टाइम पे क्या लिखा आता था, किसी को याद है? वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 आता था, और एक्सेल में शीट शीट 1। गुड। तो और पावर पॉइंट के अंदर पावर प्रेजेंटेशन 1 करके लिखा हुआ आएगा। ओके। फिर यहाँ पे माइनस है, वो इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये अगर क्लिक किया तो प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा, क्लोज करने के लिए। राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बटन है, इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। अगर मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया तो मुझे ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से हम पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यू अगर ओपन करना है तो यहाँ से करेंगे, ओपन में जाना है। अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग आपने बनाया प्रेजेंटेशन है आपके पास, तो आप ओपन से उसको कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। आपके पास नया वर्जन है तो ये सेव और सेव एज न भी हो शायद, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेव होता है। हाँ, सेव एज का ऑप्शन होगा। फिर प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के अंदर आप देखोगे तो प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू है। सेव एज में भी आप देखिए इतने सारे ऑप्शन है सेव एज करने के लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉर्मल सेव होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपको ऐसा शो, SHOW शो, मतलब उसको दिखा रहे हो, हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना है,
और कुछ नहीं दिखाना स्क्रीन पे, तो वैसे भी आप उसको सेव कर सकते हो। 97 2003 जो अलग अलग वर्जन है, उस वर्जन में आपको सेव करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। फाइंड एड इन्स फॉर अदर फाइल फॉर्मेट, अगर आपको कुछ एड इन करना है तो वो कर सकते हो। अदर फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि वो भी कर सकते हो। उसके बाद प्रिपेयर करके है। प्रिपेयर में आप देखोगे इतने सारे ऑप्शन है। प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप प्रॉपर्टीज उसके देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, एंक्रिप्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, कुछ परमिशन रिस्ट्रिक्ट करनी है। जैसे आपको लगता है कि ये जो फाइल मेरी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो सर को दिखानी है, ठीक है, और आपने मेरे साथ शेयर की, लेकिन आप चाहते हो कि मैं उसमें कुछ एडिटिंग नहीं करूँ, तो आप यहाँ पर जाके मुझे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्सेस मेरा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे मैनेज क्रेडेंशियल भी है, जैसे मैंने क्लिक किया तो मैनेज क्रेडेंशियल ओपन होगा। ओके, यहाँ पे क्रेडेंशियल एक सर्विस में जाने के लिए बोल रहा है, तो अभी हमें वो सर्विस की साइन अप करने की जरूरत नहीं, मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। हाँ, कैन नॉट यूज दिस फीचर, क्योंकि वो अभी मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। प्रिपेयर में रिस्ट्रिक्ट परमिशन में एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन है डू यू वांट टू साइन अप फॉर दिस सर्विस। ओके, अगेन ये कुछ सर्विस का मामला आ रहा है, मतलब मेरे लिए अवेलेबल नहीं है ये वाला पोर्शन। ओके, फिर सेंड, अगर आपको ये फाइल ईमेल से भेजनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके ईमेल कर सकते हो। आपको किसी को फैक्स करना है तो यहाँ से फैक्स कर सकते हो। आजकल तो अभी फैक्स का जमाना नहीं है, लोग ईमेल ही कर देते हैं या तो गूगल ड्राइव में शेयर कर देते हैं। ईमेल, अगर आपके पास जीमेल है और सामने वाला बंदा गूगल ड्राइव पे है तो आपको क्या करेगा, वो जीमेल के थ्रू शेयर कर देगा। वो फाइल के अंदर स्प्रेडशीट में और स्लाइड्स में जाकर वहां पे आपका जीमेल डाल देगा, तो आपके साथ वो शेयर हो जाएगा। इस तरह से सेंड कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, राइट, एज आई से। फिर पब्लिश करना है, तो कैसे पब्लिश करना है वो अलग अलग ऑप्शन है। आपको सीडी क्रिएट करनी है तो सीडी क्रिएट कर सकते हो। पब्लिश करना है स्लाइड, तो आपको स्लाइड पब्लिश स्लाइड फॉर्मेट में सेव करके भी कर सकते हो। क्रिएट हैंडआउट, अगर आपको हैंडआउट क्रिएट करना है, लोगों को आपके पावर पॉइंट के स्लाइड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करने, जो हॉल में सब लोग बैठे हैं और आपका प्रेजेंटेशन जो लोग सुनने के लिए आए, तो आप चाहते हैं कि उनको हैंडआउट दे दे, तो यहाँ से आप हैंडआउट क्रिएट कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट को मैनेज कैसे करना है वो यहाँ से, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस, क्रिएट ए न्यू साइट फॉर द प्रेजेंटेशन एंड कीप द लोकल कॉपी सिंक्रोनाइज। मतलब क्या है कि आप अपने कंप्यूटर में तो ये कॉपी रहेगी इसकी, लेकिन आप और कोई साइट के ऊपर भी अपना डॉक्यूमेंट को ले जा सकते हो। और बाद में लास्ट है क्लोज, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो इतने सारे फाइल के नाम है। ये क्या इंडिकेट करता है, मैंने इतने फाइल ऑलरेडी अभी तक पावर पॉइंट में ओपन करके रखे, राइट। इसमें से जरूरी नहीं कि सारे के सारे मेरे काम के हो, लेकिन ये लेटेस्ट मुझे इतना लिस्ट दिखाई दे रहा है। और बाजू में आपको पिन जो दिख रहा है ना, वो पिन करने के लिए है। पिन दिस डॉक्यूमेंट टू द रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट, ये है रिसेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैंने अभी पिन नहीं किया है, अगर मैं पिन करूंगा तो ये रिसेंट हो जाएगा। जैसे ये जूम इंट्रोडक्शन अभी मैंने ब्लैंक ओपन किया, इसको मैं पिन कर देता हूँ, अब ये हमेशा रहेगा सामने। ये पिन वाला आ गया, जैसे नोटिस बोर्ड पे पिन लगाते हैं ना, वैसे मैंने पिन लगा दी इसको। नीचे दो ऑप्शन है, पावर पॉइंट ऑप्शन, एग्जिट पावर पॉइंट। यहाँ से अभी एग्जिट नहीं करना है तो पावर पॉइंट ऑप्शन में जाते हैं। शायद आप में से किसी को याद हो तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस आपको दिखाए थे, और पावर पॉइंट में इस तरह के ऑप्शंस है। पॉपुलर में ये सारे ऑप्शंस है। टॉप ऑप्शन ऑन फॉर वर्किंग विथ पावर पॉइंट, आप देखोगे यहाँ पे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, एनेबल लाइव प्रीव्यू, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। डेवलपर टैब की हमें जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हमेशा वो डिम रहता है या अनसिलेक्टेड होता है। पूरा जो पावर पॉइंट है उसका स्कीम जो है ना, कलर स्कीम, वो ब्लू कलर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिल्वर कलर कर सकता हूँ, ब्लैक कलर भी कर सकता हूँ, लेकिन डिफॉल्ट में ब्लू रखता हूँ क्योंकि उससे अभी यूज टू हो गया है। मतलब मेरी आई जो है ना, आईज, वो ये कलर देख के उसको अच्छा लगता है, मुझे कुछ नयापन नहीं लगना चाहिए। आई एम यूज टू इट। फिर स्क्रीन टाइप, स्क्रीन टिप टाइप,
शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो स्क्रीन टिप। मतलब स्क्रीन पे मैं अपना माउस का कर्सर कहीं पे भी रखता हूँ तो उस पर्टिकुलर जगह को लेके अगर कोई टिप्स अवेलेबल है तो वो दिख सकती है। अगर किसी को टिप्स नहीं चाहिए तो वो डोंट शो सिलेक्ट करके बंद कर सकता है टिप्स। पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर नेम, अगर यहाँ पे एडमिन है तो अगर मैं कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूँ तो मुझे चाहिए कि भाई ऑथर इसका मैं हूँ, तो मेरा नाम रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इनिशियल्स लिखा है तो मैं MKB कर देता हूँ, ये मेरे इनिशियल्स है। चूज द लैंग्वेज यू वांट टू यूज विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से आप लैंग्वेज सेटिंग्स कर सकते हो। सी अभी मेरे पास जो लैंग्वेजेस है, एनेबल्ड एडिटिंग लैंग्वेज, राइट हैंड साइड पे मैंने 3 लैंग्वेज रखे हैं, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लिश, और एक गुजराती भी मैंने रखा है। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे गुजराती में फॉन्ट यूज करके प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं गुजराती यूज करके कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, आप इसमें से लगता है कि मुझे अरेबिक लैंग्वेज आती है तो आप अरेबिक सिलेक्ट कीजिए। अरेबिक में भी अलग अलग कंट्रीज के लैंग्वेज, अल्जेरिया अरेबिक है, बहरीन की है, इजिप्ट की है, इराक में भी अरेबिक है, जॉर्डन में अरेबिक है, कुवैत में है, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यानी ये बहुत लंबा लिस्ट है, मैं सब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है यहाँ पे। ओके, तो ये वाला फीचर मैं क्लोज कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं इसलिए। और ये मैंने पॉपुलर वाले में गया था, फिर प्रूफिंग में जाता हूँ तो प्रूफिंग में ये सारे ऑप्शन है, राइट। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, व्हेन जब आप मतलब आप लिखते हो और आपने कैप्स लॉक ऑन रखा है, आपने कैपिटल लिखा हुआ है, तो जब भी आप कैपिटल लिखते हो तो माइक ये पावर पॉइंट क्या करेगा, उसको अंडरलाइन करेगा, गलती दिखाएगा। अगर आपको इग्नोर करना है तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट किया है कि इग्नोर करो, अपर केस में जो वर्ड लिखे वहां पे स्पेलिंग एरर मत दिखाओ। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे थे, so you can go through each and every options and find out its uses। उसके बाद सेव ऑप्शन है मेरे यहाँ पे, ये जो सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम मैंने सिलेक्ट किया है ऑटो रिकवर करने के लिए। फिर सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में फाइल सेव करनी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो और भी 2 ऑप्शन मेरे पास, पावर पॉइंट मैक्रो एनेबल्ड प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 97 टू 2003, मतलब मेरा ये जो है वो 2007 है, लेकिन मुझे प्रीवियस वर्जन में सेव करना है तो मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही रख रहा हूँ, 10 मिनट रख रहा हूँ। और डिफॉल्ट फाइल लोकेशन C:/user/admin/document और स्लैश, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये फाइल को नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई उसको लोकेशन नहीं दे रहा हूँ, तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जाकर वो रहेगी, वो फाइल सेव होकर वो इस जगह पे पड़ी रहेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डिफॉल्ट फाइल लोकेशन चेंज हो तो मैं कर सकता हूँ, कोई भी ड्राइव में, जैसे मुझे डी ड्राइव में मयंक करके फोल्डर है, फाइल बाय डिफॉल्ट वहीं पे सेव होनी चाहिए ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े, तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे लिख के। उसके बाद और भी यहाँ पे ऑप्शन है, देन एडवांस सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे मिनिमम कितनी बार आप अंडू कर सकते हो वो एक ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, फिर डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे है, बहुत सारे प्रिंट के ऑप्शन है, कस्टमाइज करना है आपको पावर पॉइंट को कस्टमाइज कर सकते हो, तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर टॉप पे, मैं वहां पे गया नहीं हूँ लेकिन आपको सेव बटन, रीडू, अंडू दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है वो रखने हैं तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अगर इस तरफ डालूंगा, ऐड करूंगा और ओके करूंगा तो वो इधर दिखेगा। जैसे आप लोगों को एक मतलब डेमो करने के लिए मैं मुझे बार बार अगर न्यू स्लाइड की जरूरत पड़ती है ना तो मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर जाके ऐड कर दिया,
ठीक है, अब मैं ओके करूंगा ना, तो न्यू स्लाइड वहां पे ऊपर दिखेगा। कहाँ पे? एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में। ओके, अभी ओके नहीं करो क्योंकि मुझे एडिंस दिखाना है आपको। एडिंस में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। ट्रस्ट सेंटर, यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ सकते हैं। देन रिसोर्सेज, तो कॉन्टेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, फाइंड ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड मेंटेन हेल्थ एंड रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं ओके कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया क्विक एक्सेस टूल बार में एक और आइकॉन ऐड हो गया है, वो है न्यू स्लाइड। अगर मुझे नया स्लाइड ऐड करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, मैं सिंपल यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, कैन यू सी, यहाँ पे 2 स्लाइड हो गए। ये पहला स्लाइड है और ये दूसरा दूसरा स्लाइड आया। इसने बाय डिफॉल्ट दूसरा स्लाइड ये वाला दिया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब मेरा माउस मूव हो रहा है। स्लाइड के बाजू में एक ऑप्शन, मतलब एक एरो है। ये एरो बता रहा है कि आपको किस टाइप का स्लाइड चाहिए। इतने सारे स्लाइड के ऑप्शन है, ये सारे थीम भी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो डुप्लीकेट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। ओके, अभी मैं ये क्विक एक्सेस टूल बार में रहने दे रहा हूँ, आपको लोगों को दिखाया इसलिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। अभी होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सारे मेन्यू है। इसमें से काफी मेनू आपको रिपीट लगते होंगे, जो वर्ड में भी था, एक्सेल में भी थे वो मेनू, और अभी पावर पॉइंट में भी है। यहाँ पे फर्क कहाँ पे पड़ा? डिजाइन में फर्क पड़ा, एनिमेशन में फर्क पड़ा, और स्लाइड शो में फर्क पड़ा। रिव्यू, व्यू आपको सेम नजर आएंगे। ठीक है ना, फाइल भी है, अरे सॉरी, होम है, इंसर्ट है, तो वो तो वर्ड में भी था और एक्सेल में भी था। लेकिन हाँ, यहाँ पे इंसर्ट में, रिव्यू में, व्यू में कमांड अलग अलग होंगे। ओके, अभी बाय डिफॉल्ट होम सिलेक्टेड है। सो होम सिलेक्टेड है, तो होम के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? ये वाला जो सबसे पहला है वो क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड वाला है। यहाँ पे हम कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं, और अगर फॉर्मेट पेंटर करना है तो फॉर्मेट पेंटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर न्यू स्लाइड, मैंने यहाँ पे क्लिक ऐड कर दिया था एक्सेस टूल बार में, लेकिन अगर एक्सेस टूल बार में नहीं है तो मैं हर वक्त यहाँ से नई स्लाइड ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे लेआउट भी दे दिया है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लेआउट अभी दिखा है स्लाइड में जाके, तो ये लेआउट यहाँ से यूज कर सकते हो। आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई स्लाइड गलती से ऐड कर दिया, डिलीट करनी है, तो वो स्लाइड आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जरूरी क्या है? वो स्लाइड आपके स्क्रीन पे दिखना होना होना चाहिए। जैसे आपको डेमो करके दिखाता हूँ, ये वाली स्लाइड नहीं, लेकिन ये वाली स्लाइड जो अभी मैंने ऐड की, ये मुझे नहीं चाहिए। तो अभी करंटली ये स्लाइड सिलेक्टेड है, और मैंने डिलीट क्लिक किया तो वो स्लाइड डिलीट हो गई। अभी लगता है कि मुझे वो स्लाइड वापस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अंडू कर दूंगा। तो ऊपर जाके मैंने अंडू कर दिया तो वापस आ गई। ओके, बट आई एम डेम श्योर अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने डिलीट कर दिया, ये गया, ये की स्लाइड है। ठीक है, उसके बाद आप फॉन्ट साइज के ऊपर वर्क कर सकते हो। फॉन्ट बदल सकते हो, फॉन्ट की साइज बदल सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ये पूरा जो सेक्शन है ना, अभी डीम है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमारे ये स्लाइड में कहीं पर भी कोई टेक्स्ट हमने इंसर्ट नहीं किए, लेकिन द मोमेंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया। पहले इनएक्टिव था। ठीक है, उसके बाद ये भी एक्टिव हो गया। यहाँ पे हम बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे वर्ड में आपने सीखा बुलेट कैसे ऐड करना है, ठीक वैसी तरह से पावर पॉइंट में भी बुलेट का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर पॉइंट में पॉइंट तो होते ही है, पॉइंट ही होते हैं ज्यादातर। और पॉइंट हमें दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बुलेट यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के। ठीक है, अलग अलग बुलेट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें पॉइंट में पॉइंट की नंबर्स देने हैं, तो 1 2 3, और ये अलग अलग स्टाइल है नंबर्स की, तो ये यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद ये है लेफ्ट और राइट वाला, ये इंडेंट है। हमें डिक्रीज करना है लेवल या इंक्रीज करना है लेवल, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है, कम करनी है, तो वो कर सकते हो आप। लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, राइट हैंड साइड पे करना है, सेंटर में रखना है, जस्टिफाई करना है,
अगर आपको 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम या उससे भी ज्यादा कॉलम में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डेटा दिखाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे में ये चीज भूल गए, बोल्ड कर सकते हो, इटालिक, अंडरलाइन। फिर यहाँ पे एक एबीसी करके लिखा है, स्ट्राइक थ्रू। इसका मतलब ये होगा कि टेक्स्ट दिखेगी सही। शायद आपने इसको यूज नहीं किया हो तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मयंक लिखा और ये टेक्स्ट यहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मुझे इसको निकालना है तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्ट्राइक थ्रू यूज करूंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। ये सिलेक्ट किया और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये, इसको बोलते स्ट्राइक थ्रू। मतलब मैंने क्या लिखा है वो दिखेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है वो भी पता चलेगा स्ट्राइक थ्रू से। कभी कभी आप एडवर्टाइज में देखते होगे कि जो असली प्राइस होती है ना उसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक थ्रू किया होता है और ये डिस्काउंट वाली प्राइस लिखी होती है, एमआरपी के साथ साथ डिस्काउंट वाली। वो स्ट्राइक थ्रू यूज करते, कभी उसको क्रॉस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो ऐसे एक लाइन खींच देते हैं उसके ऊपर। ओके, अभी ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको अंडू करके निकाल रहा हूँ। उप्स, मैंने गलती से सेव पे क्लिक कर लिया। अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ये बाद में देखेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो, उसके बाद अलग अलग शेप आप इंसर्ट, होम में है, इंसर्ट नहीं बोलूंगा लेकिन होम में ही आपको ये सारे शेप मिलेंगे। ये सारे शेप आपको वर्ड में भी थे और एक्सेल में भी थे, कोई कुछ नया नहीं है, सेम है। आप यूज कर सकते हैं इसको। फिर अरेंज करना है तो आप अरेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर। आपको कोई ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट आपके पास है तो एक ऑब्जेक्ट आप आगे रख सकते हो, दूसरा पीछे रख सकते हो, या पीछे वाले को आगे रखना है तो ब्रिंग फॉर, ब्रिंग बैक, ये सारा आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको ग्रुप करने हैं ऑब्जेक्ट तो आप ग्रुप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये अभी डीम है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ये सब आप कर सकते हो जैसे आप वर्ड में करते आ रहे थे। ये सारी चीजें हो गई होम के बारे में। नाउ इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर बहुत सारी चीज आप इंसर्ट कर सकते हो। आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। याद है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाते थे ऐसे सिलेक्ट करके, 1 बाय 1 रो। जैसे मैंने ये किया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये, 1 1 रो 2 कॉलम हो गया। फिर ये 3 कॉलम 1 रो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो 2 रो और 3 कॉलम्स बन गया। अगर यहाँ पे जा रहा हूँ तो इस तरह से ये टेबल आ गया। ठीक है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड में अपने। आप क्लिप आर्ट में यूज करके, क्लिप आर्ट में जो ऑलरेडी अवेलेबल जो ड्राइंग्स और इमेजेस और कार्टून्स है ना वो यूज कर सकते हो। अगर आपके पास फोटो एल्बम में फोटो है तो आप फोटो यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप न्यू फोटो एल्बम क्रिएट करके यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर सकते हो। फिर आपको जो शेप मैंने दिखाया था वापस वही शेप यहाँ से कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट, आहा, जो बहुत मजा आया था ये सीखने में। तो ये स्मार्ट आर्ट भी आप यहाँ पे पावर पॉइंट में कर सकते हो। चार्ट, यस, जो एक्सेल में आपने चार्ट सीखे वो चार्ट आप यहाँ पर भी काम कर सकते हो। जैसे मैं जस्ट खाली एक क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या काम करता है। ये आपको वैसे ही ओपन करेगा अलग अलग ऑप्शंस। मैंने ये सिलेक्ट किया और ओके किया तो आपको स्लाइड में ये इस तरह से पूरा आ जाएगा। देख, Yes. इसने एक एक चार्ट बना के दे दिया। उसने जो उसके पास जो अवेलेबल फाइल थी ना एक्सेल की, वो एक्सेल की फाइल ओपन की, साइड बाय साइड दोनों ओपन करके रखा और उसने चार्ट जनरेट करके दे भी दिया। अभी मैं इसकी जरूरत नहीं, बंद कर रहा हूँ तो ये पूरा एक्सपांड हो गया। चार्ट की भी जरूरत नहीं तो इसको भी, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिलीट कर रहा हूँ तो ये गया चार्ट। सो इंसर्ट में जाके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। हाइपर लिंक भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर फुटर भी स्लाइड के लिए काम में आता है। वर्ड आर्ट ऑलरेडी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा है। डेट एंड टाइम भी चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके डेट एंड टाइम लगा सकते हो। जैसे मैंने डेट एंड टाइम क्लिक किया, अप्लाई किया तो यहाँ पे आप बॉटम में देखोगे डेट आ गई, आज की डेट यहाँ पे आ गई। तो इसको भी मैं अंडू कर रहा हूँ। स्लाइड का नंबर चाहिए, आपके पास 10 15 20 स्लाइड है आप, और आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो उस टाइम पे आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप अभी कौन से नंबर की स्लाइड पे हो। इसलिए स्लाइड का नंबर आपके सामने होना जरूरी है।
ओके, इसको भी आप कर सकते हो एडजस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कहाँ से ऑब्जेक्ट आपको करने हैं, तो आपको यहाँ पे इतने ऑप्शंस मिलेंगे ऑब्जेक्ट टाइप के। मूवी, अगर आपको क्लिप ऐड करना है कोई मूवी का, तो आप यहाँ पे मूवी क्लिप भी ऐड कर सकते हैं, छोटा छोटा। जैसे आजकल रील्स बनाते हैं ना, छोटे रील्स होते हैं 30 सेकेंड 1 मिनट के, तो वैसे रील्स आप यहाँ पे एज अ मूवी पावर पॉइंट में स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हो। फिर जब आप स्लाइड रन करोगे शो में जाके, तो वो पर्टिकुलर स्लाइड जब आएगी जहाँ पे वीडियो है, तो वहां पे प्ले का ऑप्शन आएगा, और आप प्ले करके आपके ऑडियंस के साथ वो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। साउंड, अलग अलग तरीके के साउंड है, तो वो साउंड आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड में गाना बजाना चाहते हो कि एक गाना कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, या कोई प्रार्थना रहनी चाहिए, या कुछ भी समथिंग एनीथिंग, राइट? तो दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। ये होगा इंसर्ट के लिए। और इंसर्ट के बाद डिजाइन है, डिजाइन में पेज सेटअप आएगा। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेज सेटअप कैसा रखना है, लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। ज्यादातर स्लाइड्स कैसी होती है, लैंडस्केप ही होती है। रेयर केस में आपको पोर्ट्रेट स्लाइड देखने को मिलेगी, खास करके कोई इमेज ऐसी है या कोई फोटोग्राफ ऐसा है जो पोर्ट्रेट में फिट होता है, तो उस टाइम पे पोर्ट्रेट स्लाइड सिलेक्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज स्लाइड्स नॉर्मली लैंडस्केप होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन, जो ऑलरेडी मैंने बोला कि पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। पेज सेटअप भी आप कर सकते हो। पेज सेटअप कैसा रखना है, आपको A4 साइज रखना है पावर पॉइंट का, या ऑन स्क्रीन शो रखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन ये है अलग अलग स्लाइड के थीम्स। कौन सी थीम आपको चाहिए? हमारे पास करंटली ऑफिस थीम है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारी थीम्स आ जाएगी। यहाँ पर इतनी थीम्स अवेलेबल है। हम एक एक के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो पता चलेगा ये कौन सी थीम है। जैसे ये ऑफिस थीम है, बैकग्राउंड में ऑलरेडी ऑफिस थीम है, तो कोई वहां पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये एपेक्स थीम है। आपको बैकग्राउंड में दिखेगा कि अगर हम एपेक्स थीम सिलेक्ट करते हैं, तो पावर पॉइंट की स्लाइड्स कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। अगर मैंने ये वाला थीम सिलेक्ट किया जो अर्बन है, तो मेरे स्लाइड्स ऐसे दिखेंगे। तो आप अलग अलग स्लाइड के थीम यूज कर सकते हो। उसके बाद वो थीम सिलेक्ट करने के बाद, अगर आपको थीम का कलर पसंद नहीं आता है, थीम पसंद आई है लेकिन कलर पसंद नहीं, तो आप इतने सारे आपके पास ऑप्शन से कलर चेंज कर लीजिए। आपको फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे, तो फॉन्ट यहाँ से बदल लीजिए। आपको इफेक्ट अच्छी नहीं लग रही है, तो आप यहाँ से इफेक्ट दे दीजिए। ओके, फिर बैकग्राउंड स्टाइल और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। ओके, तो ये बैकग्राउंड स्टाइल का मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग स्टाइल हम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने माउस ओवर यहाँ पे किया तो स्टाइल 10 बैकग्राउंड में दिख रही है, ये किया तो ये स्टाइल दिख रही है। तो अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टाइल इन द बैकग्राउंड एंड हम थीम अलग अलग सिलेक्ट करते हैं, दोनों में फर्क है। थीम जो होती है वो फॉन्ट के साथ सब कुछ चेंज होता है, अलग उसकी अलग एक थीम होती है। लेकिन जब हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड स्टाइल, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड को चेंज करेगा, बाकी फोरग्राउंड को एज इट इज रखेगा। हाइड करना है तो आप बैकग्राउंड को यहाँ से हाइड कर सकते हो, सिलेक्ट करने के बाद होता है ये ऑप्शन। ठीक उसी तरह से एनिमेशन, आप स्लाइड्स में एनिमेशन डाल सकते हो। इसके लिए भी इतने सारे ऑप्शन आपके पास है। जैसे ही मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो इसने तुरंत एनिमेशन दिखाना शुरू कर दिया। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो एनिमेशन आ गया। एनिमेशन की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन स्लाइड टू अदर स्लाइड, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड इंस्टेंट आ जाती है। उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, वो कुछ कुछ एनिमेशन के साथ आना चाहिए स्लाइड। ये भी हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनिमेशन का क्या यूज होता है। अगर मैंने अभी टेम्पररी माउस ओवर यहाँ पे मैं करता हूँ, तो देखो ये इसका इफेक्ट आया। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने से पहले ऐसा कुछ आएगा बीच में। अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा इफेक्ट आएगा। ये करता हूँ तो ऐसा इफेक्ट, ये करता हूँ तो ऐसा इफेक्ट। ऐसे
बहुत सारे हैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे इतने सारे ये मिलेंगे। अगर मुझे ये चाहिए, अगर मैंने ये क्लिक किया तो आपने देखा कि ये स्ट्राइप्स आ रही है, देखिए ऐसे। क्वेश्चन किया तो अपने आप रैंडमली वो चेंज कर रहा है। ओके, ये है एनिमेशन। उसके बाद ट्रांजिशन साउंड है। आपको ट्रांजिशन करता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हो तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन के टाइम पे साउंड चाहिए, जैसे क्लैप करने का साउंड चाहिए, क्लिक का साउंड चाहिए, या कोई चीज जैसे घसीट रहे हो और उसकी घिश आवाज आ रही है, वैसा साउंड चाहिए, तो वो अलग अलग ट्रांजिशन साउंड आप ऐड कर सकते हो। ट्रांजिशन स्पीड भी आप डिसाइड कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ये किया ना, तो एकदम ये फास्ट हुआ, ये ट्रांजिशन एकदम फास्ट हुआ। अगर मुझे स्लो करना है तो यहाँ से मैंने स्लो ऑप्शन सिलेक्ट किया। कैन यू सी, ये एकदम धीरे धीरे हो रहा है। अगर मैंने मीडियम सिलेक्ट किया तो उसकी स्पीड मीडियम रहेगी, एवरेज रहेगी। ओके, अप्लाई टू ऑल अगर करता हूँ तो ये सिर्फ जो ये जो क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन, उसका साउंड, उसकी स्पीड पूरे प्रेजेंटेशन में सेम हो जाएगी अगर मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ। उसके बाद एडवांस स्लाइड का एक ऑप्शन है, ऑन माउस क्लिक। आपको स्लाइड एक के बाद दूसरी स्लाइड कैसे चाहिए, तो क्लिक करने से चाहिए तो ऑन माउस क्लिक आना चाहिए। अगर आपको ऑन माउस क्लिक नहीं चाहिए लेकिन आप टाइम सेट करना चाहते हो कि एवरी 10 सेकेंड्स के बाद स्लाइड अपने आप नया आ जाना चाहिए, तो आपने 10 सेकंड का टाइम डाल दिया तो वो स्लाइड 10 सेकंड के बाद दूसरी आ जाएगी, और 10 सेकंड के बाद थर्ड स्लाइड, और 10 सेकंड के बाद फोर्थ स्लाइड। इस तरह से वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने एक बार टाइम सेट किया तो फिर आपका प्रेजेंटेशन वो टाइम के हिसाब से चलेगा। फिर आप मैन्युअली कुछ नहीं कर सकते हो। आपको वापस पावर पॉइंट में आने के बाद ये एडिटिंग करना पड़ेगा, देन ओनली ऑन माउस क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, बाद में ये वाला स्लाइड शो है। स्लाइड शो कैसे करना है, फ्रॉम द बिगिनिंग करना है। आप स्लाइड में कहीं बीच में हो, चौथे पांचवे या छठे स्लाइड पे हो, और आप चाहते हो कि प्रेजेंटेशन शुरू से आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ओके, बाय डिफॉल्ट आपका प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो बिगिनिंग से होता है, लेकिन आपको चाहिए कि मुझे बिगिनिंग से प्रेजेंटेशन नहीं, जहाँ पे मैं स्लाइड पे हूँ वहीं से प्रेजेंटेशन शुरू करना है। सो यहाँ पे क्लिक करना है, और ये है कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन। इसमें आप क्लिक करोगे, जब हम प्रेजेंट स्लाइड शो करेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। सेटअप है यहाँ पे स्लाइड शो के, ये सेटअप भी हम उस टाइम पे देखेंगे जब हम स्लाइड शो करेंगे, एक अलग टॉपिक है पूरा। हाइड करना है कोई स्लाइड तो हाइड कर सकते हैं, जैसे आपको मालूम है एक्सेल में कॉलम हाइड करते थे, रो हाइड करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्लाइड को हाइड कर सकते हो आप। रिकॉर्ड करना है कुछ तो रिकॉर्ड कर सकते हो, रिहर्सल करना है तो टाइम के साथ रिहर्सल कर सकते हो। उसके बाद रिव्यू, स्पेलिंग रिव्यू करने हैं। आपने प्रेजेंटेशन बना दिया लेकिन स्पेलिंग सही है गलत है वो चेक करना है तो आप स्पेलिंग रिव्यू कर सकते हो। ओके, रिसर्च कुछ करना है तो रिसर्च कर सकते हो। बाकी सारे ऑप्शन अभी डीम है क्योंकि हमारे प्रेजेंटेशन में कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। न्यू कमेंट, अगर मुझे कोई ये प्रेजेंटेशन में कमेंट डालनी है तो मैं न्यू कमेंट में जाके यहाँ पे मयंक भावसार और आज की डेट आ गई, और मुझे कमेंट में हाई लिखना है तो मैंने हाई लिख दिया कमेंट, तो ये प्रेजेंटेशन में कमेंट आ गई हाई। राइट, कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, कमेंट का बॉक्स दिख रहा है आपको, और जैसे ही मैंने माउस ओवर किया तो ये यहाँ पे मुझे वो दिख रही है कमेंट। एक बार मैं इसको शो करके देखता हूँ कि शो करने के टाइम पे कमेंट रहती है। नहीं, उस टाइम पे नहीं रहती है शो करने के टाइम पे। मैं वापस शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी क्या बाकी रहा, सिर्फ एक बाकी ऑप्शन रहा, वो है व्यू। ये रिव्यू का होगा, न्यू कमेंट, एडिट कमेंट कर सकते हो, डिलीट कोई स्लाइड करनी है, फोल्डर डिलीट करना है तो यहाँ से वो कर सकते हो। आपके प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से प्रोटेक्शन कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, आई थिंक ऑलरेडी आई हैव गॉन थ्रू। फिर व्यू करना है,
ये सारे व्यू के ऑप्शन है। नॉर्मल व्यू करना है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाना है, नोट्स दिखाने हैं स्लाइड के साथ तो आप ऐसे कर सकते हो। स्लाइड शो करना है तो आप यहाँ से स्लाइड शो भी कर सकते हो। जरूरी है कि आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही स्लाइड दिखानी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शन है कलर के वाले। गुड। सो आई हैव कवर्ड ऑल द व्हाट कैन आई से ऑल द मेनू, और हर मेनू में क्या क्या चीजें छुपी हुई है वो भी आपको मैंने बताया। So now, after this today's presentation, you all are ready to begin with your first PowerPoint presentation. Okay, good. तो आज मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ काम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन परसों हम जब मिलेंगे तो उस टाइम पे आज मैंने जितना बताया वो एक बार रिव्यू कर लीजिए। ये वीडियो देख के भी कर सकते हो, और आप अपने आप भी जस्ट गो थ्रू फाइल एडिट ये सब में आप गो थ्रू करके चेक कर लीजिए। ओके, गुड। Okay, sir. So let us end our class here. Bye. Thank Have a you. nice time, everyone.